Good morning, class 9th student. We are going to start today chapter 9 areas of parallelograms and triangles. Exercise 9.2, page number 159, question number 5. And see, it's very simple question for us. It is on basis on the theorem. In figure 9.17, PQRS and ABRS are parallelograms. First, we have to draw PQRS in that manner. First, PQRS, P, Q, R and S. मैंने अलग अलग डायग्राम इसलिए समझा रहा हूं कि आप ये समझ पाए कि देयर आर टू पैरेललोग्राम्स एंड दे हैव द सेम बेस। और जब टू पैरेललोग्राम होते हैं तो सेम बेस पर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन व्हाट विल बी द रिलेशन? देयर एरिया विल बी इक्वल। गॉट इट? देन इन दैट क्वेश्चन PQRS and ABRS are parallelograms. ABRS. Here is A and we have to extend this line and here will be B. AB, R and S. Got it? So there are two parallelograms. You have C here and now and X is any point on side BR. X is any point on side BR here. Show that area of parallelogram PQRS is equal to area of parallelogram ABRS, number 1, and number 2, area of triangle AXS. AXS. Got it? This is the triangle AXS is equal to the area of triangle parallelogram PQRS. Half of area of parallelogram PQRS. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. फर्स्ट वी हैव टू राइट गिवन PQRS parallelogram PQRS and parallelogram ABRS. ABRS have same base. RS we can write RS R. Got it? ये हमने लिखा, हमें दिख रहा है ना डायग्राम में? And to prove, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना आपको क्योंकि एक से ही एनी पॉइंट ऑन दिया वो तो सब डायग्राम में. To prove, फर्स्ट केस ABQ. फर्स्ट केस में हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS is equal to area of parallelogram. What is the name of another parallelogram? ABRS. Got it? Yes. And second is area of triangle AXS. Area of triangle AXS is equal to half of the area of parallelogram
आर एस. Now see please. Proof. P no. This will be the already proved. ये तो already proved है because both parallelogram have the same base and between the same parallel lines. फिर भी प्रूव करने के लिए आप लिख रहे हैं RS is parallel PB. RS is parallel PB. Got it? Opposite side of parallelogram. Why they are parallel? Opposite sides of parallelogram. Okay? Ground. And RS is common base of two parallelograms. Got it? So therefore, first step we will write area of parallelogram PQRS is equal to area of parallelogram ABRS. इसका रीजन मैं ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ. ये पैरेलल लाइन भी दोनों के बीच में मैंने बता दी और RS कॉमन फैक्टर कॉमन बेस है दोनों के बीच में. हम चाहे तो फिर लिख सकते हैं they have common base in between the parallel lines. Why they are equal? Because they have common base. Which base? What is the name of base? SR लेके दो या RS के base. And between ये इक्वेशन फर्स्ट है, ध्यान रखना हो, इसकी जरूरत पड़ेगी हमको. Between same parallel lines. Same parallel lines. Very clear everyone? Any doubt anyone? No, sir. Second case. Second case. We know what we know कि see area of triangle AXS is equal to see area of triangle AXS और parallelogram ABQS have the same base. Which base? AB sorry AS same base. अभी आप इस पोर्शन को ना देखेंगे, आप देखेंगे पैरेललोग्राम ABRS दिख रहा है सबको. एंड ट्राइंगल AXS में कॉमन बेस क्या आ रहा है? AS और सेम बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस AS एंड DR. तो इसलिए इस पैरेललोग्राम का ABRS पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो मतलब इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो इस पैरेललोग्राम के एरिया के आधे के इक्वल होगा. गॉट इट? ये भी अपने थ्योरम है. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AXS is equal to the half of area of parallelogram ABRS. Why? It is equation second. ठीक है? अब why? Because they have same base. What is the common base? AS and between Same parallel lines. parallel lines I am giving the name here AS and BR. AS and BR. आया समझ में आपको? Yes, sir. But we have to prove कि इस ट्रायंगल में या इस पैरेललोग्राम PQRS का आपके इक्वल है. अभी हमने किसके आपके इक्वल बताया?
ABRS, but we have proved that कि area of parallelogram PQRS is equal to ABRS. मतलब अगर ABRS का एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो PQRS का एरिया भी 20 स्क्वायर सेंटीमीटर होना है। तो हम ABRS की जगह क्या लिख सकते हैं? PQRS। प्रूव हो जाएगा, है ना? बट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन दोनों का एरिया इक्वल है, इसलिए अब हम इसके एरिया की जगह हम ABRS की जगह क्या लिख सकते हैं? PQRS। ओके, तो मैं उधर की लाइन ड्राफ्ट करूंगा क्योंकि इधर जगह नहीं है, उधर लिखूंगा तो मैं आपको शायद दिखे नहीं, यहाँ तक का तो क्लियर दिख रहा है। ओके, लास्ट लाइन लिखना हमको। चलिए थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, लास्ट लाइन आ जाएगी। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल AXS is equal to half of area of parallelogram। हम इस ABRS की जगह क्या लिखेंगे? PQRS। बोथ आर इक्वल, ये PQRS। Hence proved, hence proved। और एक जो है इसके पहले हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया था, ये भी मैं आपको उसमें लगा देता हूँ, है ना? और आप यहाँ पर इसमें ये जब ने ये लिखा ना, आप हिंट दे सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRS इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। गॉट इट? वेरी क्लियर एवरीवन? ठीक है। एंड नाउ एक्सरसाइज 9.1 is over। Now we start exercise 9.3। इसमें कुछ अच्छा, अब एक और बात ध्यान से सुनिए। टू ट्राइंगल्स, पेज नंबर 160, थ्योरम 9.2 सी और बुक। ये स्टेटमेंट पर अंडरलाइन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है क्योंकि आगे हम इस पर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। Theorem 9.2, two triangles on the same base are equal base and between the same parallels are equal in area। जिस तरह हमने पैरेललोग्राम में ये बात बताई है कि अगर two parallelogram have the same base and between the same parallel lines they will be equal in area। सेम कंडीशन ट्राइंगल में भी लगेगी कि अगर टू ट्राइंगल है जिनका की बेस सेम है और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस दे विल बी आल्सो इक्वल इन एरिया। उनका एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। ये थ्योरम आपको मतलब जो है हम प्रूव कर सकते हैं। इस थ्योरम को प्रूव करके इसने हमको बताया भी है पेज नंबर 161 पर, ठीक है ना? आया ना समझ में? यस सर। हाँ, तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक? वैसे तो मैं जनरल कॉमन बता देता हूँ आपको। सपोज कीजिए कि ये रफ कर दो इस थ्योरम पर आप अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि ये थ्योरम हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी थ्योरम? 9.2। अब मैं आपको एक बात बताऊं। सपोज दिस इज अ पैरेललोग्राम, व्हाट इट ABCD is a parallelogram and join AC। अब आप यहाँ देखिए कि we have two triangles, तो in these two triangles will be equal in areas। ये भी क्या होंगे? इक्वल इन एरिया। क्यों? क्योंकि ये ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। Tomorrow I will explain. Okay? Thank you very much.